آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے جس کو طلاق دیا ہے. یہ قرآن شریف کی آیت نمبر 232 بول رہی ہے. بالکل آپ کا کوئی ادھیکار نہیں کہ آپ ایک رات کے لیے اس کو دوسرے سے سونپیں. کہ اس مقصد سے نکاح کرنا، باقاعدہ طے کر کے نکاح کرنا اور یہ کہہ کے نکاح کر رہا کہ تمہارے لیے اس کو نکاح کیا جا رہا ہے تاکہ تم طلاق دے دو، وہ غلط ہے. حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، جو حلالہ کرے اس پہ بھی لعنت، جس کے لیے کیا جائے اس پہ بھی لعنت. تو ایسا حلالہ ہم نہ کہتے ہیں نہ قرآن میں ہے، وہ مطلب غلط ہے، نہیں وہ آپ نے گھڑا ہے. اگر پریوگ کیا کہ بھائی ایک رات کے لیے کنڈیشن لگائی، یہ ناجائز ہے، میں خود کہہ رہا ہوں ہاں یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے. مفتی صاحب کی ناجائز باتوں ہے. پر غور ہے. اگر تو حلالے میں اور حلال میں کیا فرق ہے؟ میں آپ بتا بتائیے ہمیں. سنو، میں سننے کی چھمتا قرآن رکھیے. روشنی میں. جے ہند ساتھیوں، میں آپ کے ساتھ مصطفیٰ چودھری، اور میرے ساتھ ہیں مولانا مفتی طیب قاسمی صاحب، استاد ہیں، وریشٹ استاد ہیں گڑھی دولت بدرالعلوم مدرسے میں. اب میں نے کچھ دن پہلے ایک پوسٹ کی تھی، کیونکہ میں قرآن شریف کا ہندی ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اور میں نے ایک پوسٹ کی تھی کہ حلالہ نام کی چیز قرآن شریف میں نہیں. جو حلالہ کو قرآن سے ثابت کر دے، میں سشرط اپنی ہار ماننے کے لیے تیار ہوں. اب اس چیلنج کو مفتی طیب قاسمی صاحب نے ایکسیپٹ کیا، اور آج وارتا کے لیے ہیں، اور بھی بہت سارے معجز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. حلالہ دراصل ہوتا کیا ہے جو پرچلن میں ہے، اور آپ کسی بھی عام مسلمان سے پوچھیں گے، یا کسی مسجد کے امام سے پوچھیں گے، یا مولانا سے پوچھیں گے بہت سارے، تو وہ حلالہ کی پریبھاشا یہ دیتا ہے کہ اگر طلاق ہو گئی، کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، وہ بھلے ہی کسی بھی کنڈیشن میں دی ہو، غصے میں دی ہو، لڑائی میں دی ہو، یا اور کچھ کارن ہو، اب وہ پتنی اس کے لیے حلال نہیں ہے. اگر اسے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی دوسرے سے نکاح کرے گا، ایک رات کے لیے وہ اس کے پاس رہے گی، اور سمبندھ بھی استھاپت کرنے پڑیں گے. ایک رات رکھنے کے بعد وہ اس کو طلاق دے گا، اور طلاق کے بعد پھر وہ عدت میں بیٹھے گی 4 مہینے کے، اور پھر اس پہلے پتی سے اس کا نکاح ہوگا. یہ حلالے کی پریبھاشا ہے. اب میں نے چیلنج دیا تھا، میں قرآن شریف کا ترجمہ جو ہندی انواد ہے، یہ مولانا سید ابو المولا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ہندی انواد مولانا محمد فاروق خان نے کیا ہے. اب میرا تو چیلنج ہے کہ اس طرح کی کوئی پرکریا حلالہ نام کی قرآن شریف میں نہیں ہے. مفتی صاحب بتائیں گے، کیونکہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن میں حلالہ ہے. میں اتنا ہی ٹائم لوں گا، آپ بتائیں حلالہ قرآن شریف میں کہاں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بات واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے دوستوں نے میرے پاس فون کر کے یہ بات کہی کہ اس طرح کے بحث و مباحثے سے بچنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ بحث و مباحثہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ بحث و مباحثہ کتنا ہی کر لو، جس نے یہ ٹھان لیا کہ مجھے ماننا نہیں ہے تو ماننا نہیں ہے. لیکن مجبوری یہ پیش آئی کہ میرے پاس دوسرے بہت سارے لوگوں کے فون آئے. اس طرح کی جو ویڈیوز آتی ہیں سوشل میڈیا پر، جس میں قرآن کے، اسلام کے حوالے سے الٹے سیدھے دعوے کیے جاتے ہیں، ان کو بہت سارے سیدھے سادے مسلمان سن کر بہک جاتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ بھائی مصطفیٰ چودھری کا دعویٰ ہے، کوئی مولوی سامنے نہیں آ رہا ہے، کوئی اس کا جواب نہیں دے رہا ہے، اس کا مطلب بات صحیح ہے. اس بنیاد پر مجھے سامنے آنا پڑا، اور اس سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے میں تو اسی دن تیار تھا، جس دن انہوں نے پوسٹ ڈالی جمعرات کی رات کو، اسی دن تیار تھا. پر جمعے کو یہ اس سلسلے میں شاید سہارنپور کچھ گیان لینے کے لیے چلے گئے تھے، تو اس دن موقع نہیں مل سکا. پھر پورا ہفتہ میں مدرسے میں رہا، مدرسے میں میرے پاس فرصت نہیں ہوتی، وہاں ذمہ داریاں ہیں. آج جمعے کو وقت ملا ہے تو میں اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوں. دوسری بات یہ ہے، آپ سب لوگ معزز حضرات بیٹھے ہیں، اور اس ویڈیو کے ذریعے جو حضرات اس کو سنیں گے، دیکھیں گے، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں بٹھا لینا ضروری ہے کہ یہ سوال ہی غلط ہے کہ فلاں چیز قرآن میں کہاں ہے. اس لیے کہ صرف قرآن میں ساری چیزیں ہوں، ہر حکم قرآن سے ثابت ہو، ایسا ضروری نہیں. قرآن خود یہ کہتا ہے کہ اللہ کی بھی مانو، رسول کی بھی مانو. بغیر حدیث کے، اس سے پہلے ایک آپ لوگوں نے ڈیبیٹ وہ دیکھی ہوگی ویڈیوز میں شیخ نظام الدین کے ساتھ، بغیر حدیث کے نماز تک، کلمہ تک کوئی چیزیں ثابت نہیں کر پائے.
تو ہر چیز قرآن میں ہو ایسا ضروری نہیں. یہ سوال ہی غلط ہے کہ ہر چیز قرآن سے دکھائی جائے. قرآن سے بھی کچھ چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں, حدیث سے بھی ثابت ہو سکتی ہیں. جو چیز قرآن سے ثابت ہو وہ بھی حتمی اور یقینی ہے, جو حدیث سے ثابت ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے بارے میں حکم فرمایا ہو وہ بھی اتنا ہی یقینی اور ضروری ہے. اس لیے یہ سوال ہی اصلاً غلط ہے. تیسری بات, کوئی چیز قرآن میں موجود بھی ہو تب بھی اس قرآن سے اس حکم کو سمجھنے کے لیے, مصطفیٰ چودھری نے ویڈیو میں بات کہی تھی کہ علماء کہتے ہیں کہ اتنے علوم کی ضرورت ہے, فلاں چیز شرط ہے. جب قرآن کا انواد موجود ہے ہندی میں تو ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اب میں اس بات کو تو یہی چھوڑتا ہوں کہ کن کن چیزوں کی قرآن سمجھنے کے لیے ضرورت ہے, اس بات کو چھوڑ دیا جائے. صرف انواد ہی کی بات لے لو, صرف انواد پڑھ کر قرآن کا صحیح مطلب سمجھنا یہ ممکن ہی نہیں ہے. میں مثال سے سمجھاتا ہوں. انواد تو انواد ہے, ہم اردو بولنے والے ہیں, ہندی بولنے والے ہیں, آپ سب لوگ ہندی اور اردو بولنے والے ہوں. میں یہاں بیٹھ کر کوئی بات کہوں اور آدمی ایک وہاں سے گزر رہا ہو, وہ صرف میری آواز سنے تو میری بات کا بھی صحیح مطلب وہ نہیں سمجھ سکتا. مثال کے طور پر آپ کو نزلہ ہو اور نزلے کی وجہ سے میں آپ کو کہوں آپ ٹھنڈا پانی سے بچیے اور ٹھنڈا پانی حرام ہے آپ کے لیے. ایک آدمی وہاں سنتا ہوا جا رہا ہے, اس نے صرف یہ سنا کہ ٹھنڈا پانی حرام ہے, تو میرے لفظ سن کے بتاؤ وہ صحیح مطلب سمجھ جائے گا؟ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو, آپ کو صحیح مطلب پتا ہے کہ نزلے کی وجہ سے ان کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ ٹھنڈا پانی مت پینا. جو صرف اس بات کی آواز کو سنے گا اور اس کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ کس پس منظر میں کہی جا رہی ہے تو وہ اس کا صحیح مطلب نہیں سمجھ سکتا. قرآن کا صرف انواد پڑھ کے, صرف لفظی ترجمہ پڑھ کے, جب تک اس کا شان نزول نہ پتا ہو اور وہ ماحول اور وہ پس منظر نہ پتا ہو کس پس منظر میں وہ بات کی جا رہی ہے, جب ہماری اصلی بات جو ہماری اپنی بھاشا میں کی جا رہی ہے اس کا مطلب نہیں سمجھا جا سکتا, تو قرآن کا مطلب سمجھنا بھی اتنا آسان نہیں ہے. چوتھی بات, مصطفیٰ چودھری نے ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا, میں پڑھ رہا ہوں, ابھی پڑھ ہی رہا ہوں اور دعویٰ کر دیا. پہلے پورا پڑھ تو لیتے, پورا پڑھ کے ہی تو پڑھنے لگا ہوں اور دعویٰ کر دیا. میں نے فون پہ بات کی ان سے تو یہ کہہ رہے مجھے ایسا لگا, ایسے ہی تھا نا, ایسا لگنے کی بنیاد پہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ کوئی مولوی ثابت کر دے, کوئی عالم ثابت کر دے, اور قرآن میں ہے ہی نہیں. پورا پڑھنے کے بعد تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے پورا پڑھ لیا, اب یہ پڑھنے لگے ہیں اور دعویٰ کر دیا. پھر ایک اور ویڈیو میں نے کسی اور پس منظر میں انہوں نے یہ بات کہی کہ ابھی میں نے قرآن میں نکاح, طلاق اور حلالے کا بیان پڑھا, مجھے کوئی ثابت کر دے قرآن میں ایسا کوئی چیپٹر, ایسا کوئی درس اور سبق ہے کیا کہ جس میں نکاح کے مسائل ایک جگہ ہوں, طلاق کے ایک جگہ ہوں, حلالے کے ایک جگہ ہوں, دوسرے الگ جگہ پہ ہوں کہ ہم نے ایک بیان پڑھ لیا اس لیے ہم نے دعویٰ کر دیا. ایسا قرآن میں کوئی چیپٹر نہیں ہے کہ نکاح کا چیپٹر یہاں ہے, طلاق کا چیپٹر یہاں ہے, حلالے کا چیپٹر یہاں ہے. تو ایسا نہیں ہے تو پھر کیسے نکاح اور طلاق اور حلالے کو پڑھ لیا گیا؟ میری سمجھ سے باہر کی بات ہے. اب ہم آتے ہیں اصلی مدعے پر. بات ہے حلالے کی. حلالہ کسے کہتے ہیں یہ بھی چودھری صاحب نے بھی بتایا, حالانکہ آدھی ادھوری جانکاری دی ہے اس بارے میں بھی. حلالے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی, 3 طلاق کا اختیار دیا ہوا ہے شریعت نے, 3 کا جو اختیار تھا اس نے پورا کا پورا ختم کر دیا, 3 طلاقیں دے دی. اب اسلام یہ کہتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے کہ تو نے چونکہ ایک نعمت کو ٹھکرایا ہے, لہٰذا اب وہ عورت جس کو تو نے ٹھکرا دیا وہ اب تیرے لیے حلال نہیں ہے, وہ دنیا میں جس سے چاہے نکاح کرے. کسی اور سے نکاح کرنے کے بعد اب جس طرح اور سب لوگ اس کے لیے اجنبی ہیں, وہ پہلا شوہر بھی اجنبی ہے. اگر خدا نہ خواستہ بائی چانس وہ بھی طلاق دے دے یا اس کا خدا نہ خواستہ انتقال ہو جائے, اب جس طرح اور کسی بھی مرد سے عورت نکاح کر سکتی ہے اب اس سے بھی کر سکتی ہے, چونکہ اب یہ بھی اس کے لیے باقی مردوں جیسا ہے. ڈائریکٹ اس مرد سے وہ عورت نکاح نہیں کر سکتی. شریعت نے اس کو سزا دی ہے کہ جس نعمت کو تو نے ٹھکرا دیا اب تو اس کے لائق اور اہل نہیں ہے. جب وہ دوسرے سے نکاح کر لے, دوسرے سے نکاح کرنے کے بعد اب یہ اس کے لیے بھی حلال ہو گئی, اسی کا نام حلالہ ہے. رہا یہ مسئلہ کہ کیا چل رہا ہے, کیا لوگ کہتے ہیں, تو یہ بات میں صراحت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس مقصد سے نکاح کرنا, باقاعدہ طے کر کے نکاح کرنا اور یہ کہہ کے نکاح کرنا کہ تمہارے لیے اس کو نکاح کیا جا رہا ہے تاکہ تم طلاق دے دو, وہ غلط ہے. حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر لعنت بھیجی ہے, لعن اللہ المحلل والمحلل له, جو حلالہ کرے اس پہ بھی لعنت, جس کے لیے کیا جائے اس پہ بھی لعنت. تو ایسا حلالہ ہم نہ کہتے ہیں نہ قرآن میں, لیکن دوسرے مرد سے نکاح کرنا, نکاح کے بعد پہلے کے لیے حلال ہو جانا, یہ قرآن میں ہے. اور پھر وہ جو بات آپ نے کہ سمبند, کیا لفظ بولا تھا ہندی میں آپ نے,
संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित वाली बात है। बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत है, हजरत दिफा कुरैज़ी रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दी। हजरत ज़ुबैर से गालिबन उन्होंने निकाह किया। वो वापस पहले शोहर के साथ जाना चाहती थी। अल्लाह के नबी ने साफ कहा, ला हत्ता तज़ूक़ी उसैलतहु व यज़ूक़ु हुवा उसैलतकी, जब तक वो तेरा मज़ा ना चख ले, हालांकि बड़ों के सामने लफ्ज़ अच्छा नहीं लग रहा, तब तक जो है तू पहले के लिए हलाल नहीं हो सकती। तो आयत का जो मतलब अल्लाह के नबी ने बताया वो सही है, जो सहाबा ने समझा वो सही है। दुनिया के अनुवाद वाले कुछ भी समझते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आता हूँ कुरानी आयत पर जिसमें इस हलाले का जिक्र है। आप खोलिए, अपना अनुवाद खोलिए, सूरह वो बकरा। बता दिया आपने। नहीं खोलिए उसे, बता यार ना दिया। सूरह बकरा आयत नंबर 230 खोलिए। ये है, इस आयत का अनुवाद पढ़िए, आप ही पढ़िए। वैसे इस आयत का अनुवाद चलो, पढ़िए आपका और कुछ समय- नहीं, अनुवाद पढ़िए। नहीं कमेंट, आपने समय अपना दे दिया। हाँ जी, नहीं अभी मेरा समय 1 मिनट है, जब तक आप अपना समय पूरा कर दें, मैं आप अनुवाद खुद पढ़ दो। बता दूंगा। नहीं मैं बताऊंगा, अनुवाद तो पढ़ दो ना, मेरे टाइम में पढ़ दो। आप मेरे टाइम में इस आयत का अनुवाद पढ़ दो। आप ही पढ़ेंगे ना इसका। मैं हिंदी नहीं, मैं कम जानता हूँ। आप हिंदी अपने समय आप उर्दू में पढ़िए। मैं हिंदी कम जानता हूँ। आप अपना समय आप खुद दीजिए, मैं तो बताऊंगा ना अपने हिसाब से। अल्लाह ताला फरमाता है, फ़इन तल्लक़हा, अगर वो फिर तलाक दे दे, फला तहिल्लु लहू मिन बादु, तो वो औरत अब इसके लिए हलाल नहीं रही, हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, यहाँ तक कि वो दूसरे शोहर से निकाह कर ले। जब दूसरे शोहर से निकाह कर ले, अब इसके लिए हलाल हो गई, इसी का नाम हलाल है। ये कुरान में हो गया, समय पूरा हो गया। वैसे जो मेरा सवाल था और जो मेरा चैलेंज था, वो मुफ्ती साहब ने बाकायदा स्वीकार कर लिया। आप इनका जो भी 5-6 मिनट की इन्होंने स्पीच दी, इन्होंने ये कहा कि शर्तों के साथ ये निकाह करके तलाक, जैसा कि मतलब इसमें तलाक। एक चीज और कह दूं, मैं एक चीज और कह दूं जी। छोटी सी। इस तरह शर्त लगा के निकाह करना तो हाँ। नाजायज है, लेकिन अगर किसी ने ऐसा भी कर लिया तब भी वो औरत हलाल हो जाएगी। तलाक के बाद जो कुरान शरीफ की आयत नंबर 230 अल बकरा की मुफ्ती साहब ने पढ़ के सुनाई कि जिसने तलाक दे दी, 3 तलाक हो गई। वो अलग बात है कि तलाक का भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है, वो उस पर उसमें बात नहीं क्योंकि उस पर हमारी बात नहीं हो रही है, सिर्फ हलाला पर हमारी बात हो रही है। और जब 3 बार तलाक का प्रोसीजर पूरा हो गया, अब वो औरत उसके लिए हलाल नहीं है, यहाँ तक कि दूसरे से निकाह कर ले। नहीं। हाँ, वो जब तो है। दूसरे से निकाह कर लेगी तो हलाल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। यही तो हलाल है। क्यों जी? अब औरत उस औरत पर नहीं तो पहले शौहर का कोई अधिकार है। बिल्कुल। अगर मैंने, मुफ्ती साहब ने या किसी ने, आपने अगर किसी औरत से तलाक दे दी, तो उसके ऊपर उस शौहर का अब अधिकार क्या रहा? कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं है। अब उसकी मर्जी है, वो किसी से निकाह करे या ना करे। बाई चांस अगर उसने किसी से निकाह कर लिया और निकाह करने के बाद ये शर्त नहीं कि वो तलाक देगा, बिल्कुल कोई शर्त नहीं, ये शर्त बिल्कुल नहीं है कि वो तलाक देगा। अगर संयोग से कभी उनमें अनबन हो या उसका देहांत हो जाए, इंतकाल हो जाए, अब वो औरत आजाद हो जाए, बिल्कुल पति के उसमें ना रहे। अब अगर दोनों, जो पूर्व का पति था उसका और ये औरत, दोनों की रजामंदी हो अगर तो निकाह हो दोनों की सकता है। रजामंदी हो तो अब निकाह हो सकता है। अब ये हलाल है, इसमें हलाला नहीं है। हलाले का मतलब ये है कि आप प्रयोग कर रहे हैं। हलाल का ये मतलब है ही नहीं, ये मतलब आपने खड़ा है। नहीं, ये मतलब आपने खड़ा है। हलाल कुरान ये में है। हलाल हो गया, हलाल। ये हलाल हो गया, की मतलब है हलाल हो गया, हलाला नहीं हुआ है। मतलब आप बता रहे हो वो मतलब गलत है। नहीं, वो आपने खड़ा है। अगर प्रयोग किया कि भाई एक रात के लिए कंडीशन लगाई, ये नाजायज है, मैं खुद कह रहा हूँ। हाँ, ये नाजायज ये है। नाजायज है। मुफ्ती साहब की नाजायज बातों पर गौर है। अगर कंडीशन लगाई, भाई साहब, हाफिज साहब 1 मिनट, अगर कंडीशन लगाई, सपोज करो किसी ने तलाक दे दिया अपनी पत्नी को और अब फिर उसको रखना चाह रहा, अब कंडीशन लगा दी कि भाई फला आदमी, तू मेरी औरत से रात भर के लिए एक निकाह कर ले और सुबह आपने तलाक देना है, यही हलाला होता है। और ये हलाला नहीं है, ये होता है। हमें नहीं पता क्या होता है, हम तो कुरान की बात कर रहे हैं। कुछ भी करते रहो, कुरान ही कहता है जब तक दूसरे से निकाह ना हो जाए तब तक पहले के लिए हलाल नहीं। अच्छा, दूसरे मुफ्ती से साहब, निकाह के बाद वो पहले के लिए हलाल होगी, इसी का नाम हलाल है। मुफ्ती साहब 1 मिनट, यही शरई हलाल है। मुफ्ती साहब, आप नादान नहीं है, नहीं मैं नादान हूँ, नहीं दर्शक नादान है। जितने भी हलाला के केस आते हैं जी, मेरे गांव में अभी 3 साल के अंदर 3 केसेज जो है, मैं नहीं कहता कि हलाला मुसलमानों में एक लंबी प्रक्रिया है कि हर घर में हलाला होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई रेयर केस आ जाता है, बहुत कम कंडीशन में। लेकिन मेरी बात सुनो, जिसकी बीवी का तलाक हो गया, वो मुफ्ती साहब से, मौलाना साहब से, मस्जिद के इमाम से पूछता है कि हजरत इस तरह मैंने तलाक बोल दिया, तलाक हुई कि नहीं हुई? मुफ्ती साहब या मौलाना साहब बोलते हैं कि नहीं होगी तलाक या नहीं हुई।
अब तलाक हो गई, कह दिया अगर मुफ्ती साहब ने, मौलाना साहब ने, और फिर वो बंदा ये चाहता है कि मुफ्ती साहब मैं तो उसे रखना चाहता हूँ। अब मुफ्ती साहब ही तो उसको बताता है कि अब इसको दूसरी से निकाह करना पड़ेगा, दूसरे शख्स से निकाह करना पड़ेगा, और वो अगर तलाक दे दे तो आप उसे रख सकते हैं। मुफ्ती साहब ने ये कुरान में है? हाँ, यही कुरान में, ये कुरान में है? यही कुरान में, और यही बिल्कुल हलाला है? यही कुरान में, हलाला नहीं है, ये हलाला है? ये हलाला नहीं है, आप कहते रहो, सुनो मेरी बात, लंबी बहस करने ये से हलाल। बात नहीं, मेरी बात सुनो, एक मिनट, एक मेरी पूरी हो जाए, आप काफी बोल रहे हैं। अगर कंडीशन के साथ हलाले होते हैं तो उसको कौन इजाजत देता है? मौलाना इजाजत देता है या लोग ये खुद करते हैं ऐसा? सुनो मेरी बात सुनो, एक और मैं तीन हलाला के केस की बात कर रहा हूँ जो मेरी नज़र में मेरे गांव में है। अब मेरी सुनो, एक लड़के ने तलाक दे दिया, इसको छोड़ एक लड़के ने तलाक दे दिया तो एक जमात के साथी से उसका निकाह कराया, उसी के बेडरूम में उसको रात भर के लिए छोड़ा गया और सुबह उससे तलाक ले ली, और अब उसकी इद्दत पूरी करने के बाद उसके निकाह कर दिया। एक और लड़के ने तलाक दिया, एक रात के लिए उसके भाई को बिठाया गया। आपने तीन केस बता दिया ना, बस हो गया। एक और लड़के ने तलाक दिया, उसके लड़के के भांजे को उसको रात भर के लिए बिठाया और सुबह तलाक लेकर के और फिर इद्दत में बिठाना, ये क्या जायज है? अब सुनो मेरी बात, और इसी को हलाला बोलते हैं। खामोश रहो। हम जो कह रहे हैं वो शरीयत का हुक्म है, और वो ये है कि अगर किसी ने 3 तलाक दे दी, वो उसके लिए उस वक्त तक हलाल नहीं हो सकती जब तक वो दूसरे से निकाह ना कर ले। ये संयोग हो, प्रयोग ना हो। सुनो मेरी बात, अब बीच में मत बोलो, ये प्रयोग ना हो, संयोग हो। मेरी बात पूरी सुनो। वो उस वक्त तक हलाल नहीं हो सकती जब तक दूसरे से निकाह ना कर ले। बिल्कुल। निकाह करके बाई चांस उसने भी अगर तलाक दे दी है, उसका इंतकाल हो गया, तब ये पहले के लिए हलाल है। शरीयत इसी को हलाला कहती है। अब रही प्रयोग वाली बात, मैं खुद कह रहा हूँ और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि बाकायदा शर्त लगा के ऐसा करना नाजायज है। बिल्कुल। सुनो, यही मेरा सवाल था। लेकिन अगर ऐसा कोई कर लेता है, नाजायज काम किया, लेकिन हलाल फिर भी हो जाएगी। हलाल तो फिर भी सुनो, अब रहा ही मसला कि लोग कर रहे हैं। हम तो यहाँ गांव में, आप ही के गांव में लड़ के लोगों के साथ उनकी खुशामदे कर करके, ठोड़ियां पकड़ के, पैर पकड़ के, थक गए नशा ना करो, फिर कर रहे हैं। उस पर हमारी क्या जिम्मेदारी है? हम बता रहे हैं कि ऐसा मत करो, नाजायज है, फिर भी कोई कर रहा है तो हमारा क्या कसूर है इसमें? यानी कि लोग गलत कर रहे हैं। अगर तय करके कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर यही तो, बस यही था मेरा भी सवाल, बस क्लियर, मेरी तरफ से क्लियर हो गया। सवाल ये नहीं था। आप कहता कुरान में हलाले का जिक्र नहीं, मैंने सबके सामने कुरान में हलाले का जिक्र दिखाया। प्रधान जी, कुरान में हलाले का जिक्र नहीं, सुनो, हलाल का जिक्र है, हलाले का नहीं है। हमारी बात खत्म हो गई। हलाल का जिक्र है, हलाले का नहीं है। हमारी बात पूरी हो गई। अब ये मौजूदीन में से आप किसी का की राय लेना चाहें ले लें, बाकी नहीं, किसी का कोई सवाल हो। आप लोग बैठे हैं, हलाले का जिक्र कुरान में आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? जी समझ में आया? किसी को ना समझ में आया, मैं समझाने को तैयार हूँ। हमारी समझ में आया जी। किसी को भी समझ में ना आया, हलाले का जिक्र कुरान में, मैं तैयार हूँ। बात हमारी पूरी हो गई। अब इस पर नाजरीन पे छोड़ दो। बिल्कुल, अपने छोड़ दो, वो समझेंगे नाजरीन पर ही है। बस मैं अब अगर ये 10 आदमी कह रहे हैं हलाले का जिक्र कुरान में है, आपने कहा था जो सजा दोगे दे देना, ये इन्हीं पे छोड़ता हूँ। ये सब हमारे बड़े हैं, जो आपको सजा तय करना चाहें कर लें। मेरी बात खत्म हुई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो ठीक है, मेरा जो सवाल था मैं अपनी बात रख दूं, नाजरीन जो दर्शक देख रहे हैं, हलाले का आप कुछ कहेंगे तो बोल देना। हलाले का मतलब हलाल नहीं है, जो कंडीशन के साथ ये जो प्रक्रिया कराई जाती है ये कुरान में नहीं है, और इसी को हलाला बोलते हैं। और यही कुरान में नहीं है कि कंडीशन नहीं लगाए। आप बोलते हो, हम नहीं बोलते। शरीयत नहीं बोलती, आप बोलते हो इसको। बिल्कुल, ये आयत नंबर 230 अल बकरा की जो है, फिर अगर 2 बार तलाक देने के बाद पति ने पत्नी को तीसरी बार तलाक दे दी तो वह औरत फिर उसके लिए हलाल ना होगी, हलाल ना होगी, सिवाय इसके कि उसका निकाह किसी दूसरे व्यक्ति से हो और वह उसे तलाक दे दे। अब इसमें यह है, इसकी जो तफसीर है अपनी जुबान से, इसी का नाम हलाल है कुरान में। किसी समय खुद अपनी इच्छा से तलाक दे दे, जिसके साथ निकाह हुआ ना, अब इसके तलाक के बाद वो अपनी इच्छा से तलाक दे दे। वही बात है जो हम इससे साजिश निकाह और तलाक का जायज होना सिद्ध नहीं होता, जो सिर्फ पहले पति के लिए औरत के हलाल करने के लिए किया गया हो। औरत को हलाल करने के लिए ये प्रक्रिया कुरान शरीफ इसको खंडन करता है। अब यही मेरा सवाल था, मेरा सवाल स्पष्ट हुआ। और मैं ये बात एक छोटी सी बात कहो, इधर कर भाई औरत तलाक जी दूसरे से निकालेगा, अगर अपनी मर्जी से दूसरा तलाक दे दे, तलाक होगी, और वह औरत और पिछला मर्द अपनी राजी से निकाह कर ले तो उसमें हरज क्या है? बिल्कुल कोई हरज नहीं, वो हलाल होगी ना उसके लिए। एक मिनट, ये कुरान में है, ये कुरान में है। एक मिनट, नहीं, ये हलाला नहीं है, ये हलाल है। हलाला, एक मिनट, हाँ मैं क्या पूछो आप
जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि ये हलाल है और हलाला नहीं है, तो हलाले में और हलाल में क्या फर्क है? मैं आप बता बताइए हमें, सुनो, मैं सुनने की क्षमता कुरान की रखिए। रोशनी में। हलाला और हलाल, एक तो होता है संयोग और एक होता है प्रयोग। संयोग तो इसको कहेंगे कि संयोग हलाल को कहेंगे तेरे हिसाब से, और हलाल प्रयोग को कहेंगे, यूं तो कहना चाह रहे हैं। संयोग ये होगा कि पति के तलाक के बाद किसी औरत ने दूसरे से निकाह कर लिया अपनी इच्छा से, आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते, जी जी जी। आपका हक नहीं है। अब आपने अगर अपनी बीवी से तलाक दे दी, आप कौन होते हैं उसका दूसरे से निकाह कराने वाले? बिल्कुल, या अधिकार है उसका किसी पर? जब उसका अधिकार नहीं है, वो अपनी मर्जी से किसी से निकाह करे या ना करे। अगर उसने अपनी मर्जी से किसी से निकाह किया और कुछ दिन के बाद वो या तो एक्सपायर हो गया, इंतकाल फरमा गया, या उसने तलाक दे दी किसी, अब अगर ये दोनों पूर्व पति और ये इसकी पत्नी अगर फिर से अगर दोनों चाहें तो निकाह कर सकते हैं। ये है संयोग। और ये जो कि भाई एक रात के लिए तू रख ले और सवेरे इसको तलाक दे दे, ये प्रयोग है और यही हलाला है। दिखाओ कहाँ लिखा हुआ? और प्रयोग, नहीं, प्रयोग का नाम हलाला कहाँ लिखा हुआ? दिखाओ किसी किताब में दिखाओ। प्रयोग का हलाला नहीं होता, संयोग और प्रयोग अलग चीज होती है। प्रयोग को हलाला कहते हैं, ये कहाँ लिखा हुआ? आप बताओ। आप ये आप कह रहे हैं ना, लिखा हुआ दिखाओ। इसे प्रयोग किसे कहें? प्रयोग बताओ। प्रयोग को हलाला कहते हैं। प्रयोग का मतलब क्या हो? को हलाल आप ही जो बता रहे हैं वही इधर मतलब। मुफ्ती साहब नहीं, प्रयोग का मतलब क्या हो? प्रयोग का जो मतलब बता रहे हैं वही मतलब है, लेकिन क्या उसको हो हलाला नहीं, कहते हैं। क्या समझ रहे हैं आप प्रयोग का मतलब? प्रयोग का ही मतलब समझ रहा है कि तय करके कि भाई एक रात आप रखोगे फिर तलाक दोगे, इस्तेमाल करके तलाक दोगे, इसको आप कह रहे हैं ये प्रयोग है, ये प्रयोग इसको हलाला कहते हैं। इसको हलाला कहते हैं, ये कहाँ लिखा हुआ? दिखा। अर्थात किसी समय खुद अपनी इच्छा से तलाक दे दे, जिससे दोबारा निकाह हुआ ना, अगर अपनी इच्छा से तलाक दे दे, इससे साजिशी निकाह और तलाक का जायज होना सिद्ध नहीं होता, जो सिर्फ पहले पति के लिए औरत के हलाल करने के लिए किया गया हो। तो इसको हलाला कहते हैं, ये कहाँ लिखा? हलाल मेरा भी तो सवाल वही है कि हलाला नहीं है। हलाल और हलाले में फर्क बता रहे हो, उस फर्क को हमें दिखाओ, लिखा हुआ कहाँ? हलाला तो है ही नहीं, हलाल है वही हलाला है, दोनों में कोई फर्क नहीं। ये हलाला ये जो घुमा के जो प्रक्रिया करी ना कि एक रात के लिए, तो हम भी गलत अच्छा कह रहे हैं। मुफ्ती साहब एक मिनट बड़ी एक ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दे दो, बस फिर बंदी कर रहे। कोई गैरतमंद इंसान ये गवारा करेगा कि जिस पत्नी से उसका निकाह था, जो उसके निकाह में थी, और उसने उससे तलाक दे दी, और फिर उसको दोबारा रखने के लिए किसी तीसरे से निकाह करके उसी बेडरूम में जिस बेडरूम में आपके घर में आपकी पत्नी रहती है, उसमें एक रात के लिए किसी गैर मर्द को उसके साथ सुलाएंगे और उसके साथ संबंध स्थापित करने की हिदायत देंगे, ये एक गैरतमंद आदमी गवारा कर सकता है कि या कुरान ऐसा कह सकती है क्या? बिल्कुल। सुनो कुरान ने तो कह दिया कि जब तक दूसरे से निकाह ना हो जाए, और तो कह दिया, लेकिन प्रयोग ना हो। प्रयोग को हम भी नहीं कह रहे, प्रयोग ना हो, प्रयोग को हम भी नहीं कह रहे। सुनो, ये जो कह रहे हैं ना कि गैरतमंद बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये जो उसने 3 तलाक दे के बहुत बड़ी जुर्म का इर्तिकाब किया, यही तो उसकी सजा है कि उसके बेडरूम में उसको तो उसकी सजा है कि उसकी बीवी दूसरे से निकाह करके दूसरे के साथ रहे, ये महरूम हो जाए, मतलब उसके बाद हो जाए। तलाक देने के बाद भी उस पर उसका अधिकार है? बिल्कुल नहीं कि मेरे बेडरूम में आप दूसरे को लेकर, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है? मुझे क्या पता क्या है, अब जो ना ऐसा थोड़ी ना, हम नहीं कहते ना, ये आप कह रहे कि ये उसके लिए ये सजा है, उसके लिए सजा है कि उसकी भी दूसरे के निकाह में चली गई। सजा किसके लिए है? मर्द के लिए। और दूसरे के नीचे दूसरे को किससे सौंप रहे? इसको, औरत को, जिसका निकाह हुआ उसकी बीवी है। हाँ, उसको जिससे निकाह हो गया वो उसकी बीवी है, तलाक होगी ना, उससे दूसरे से जो निकाह हुआ उसकी बीवी है, इसका तो कोई संबंध ही नहीं, इससे पहले वाले से कोई ताल्लुक ही नहीं। सजा किसको दे रहे? मर्द को, जिसने 3 तलाक दी। पहले वाले को? कौन सी सजा दी उसको? सजा दी कि उसकी बीवी को उससे महरूम कर दिया और उसकी बीवी को दूसरे के निकाह में दे दिया। अच्छा, ये उसके लिए सजा है। नहीं, उसे तो छोड़ दिया, उसके लिए सजा क्या है? फिर मतलब सजा आप उसको बोल रहे ना कि उसको एक रात के लिए किसी से सौंपे, इसको बिल्कुल ये महरूम करके दूसरे के निकाह में दे दिया। आपको इतना तो इल्म होगा कि ये जो इस तरह के हलाले होते हैं वो उसी के बेडरूम में उसी के में छोड़ा जाता है, बाहर का मर्द हम नहीं कहते, होता है ना प्रैक्टिकली, पता होता है, होता तो यहाँ प्रैक्टिकली होता है नहीं, ऐसा होता तो पता नहीं क्या क्या है, हम तो मना करते हैं सबसे। नहीं, हमारी बात नहीं, सुनो, बात खत्म करते हैं। नहीं, मेरी तरफ से हलाल का जिक्र है, हमने साबित कर दिया। हलाल का जिक्र है, अगर अब भी कोई हलाला इसमें साबित करे, हलाल का जिक्र है, हलाला कभी नहीं है कुरान शरीफ में। ये हलाल एक मक्कारी है, हलाला एक मक्कारी है। हमने जो है, और गद्दारी गलती पुरुष ने की है, गलती से तलाक देने की, और सजा आप उसकी औरत को देंगे, मर्द को ही है। मैंने अभी साबित किया, दूसरे पति से दूसरे, वो तो उसका पति हो गया, उसके लिए सजा क्या है? तो फिर उसके लिए क्या सजा? अगर वो उसको छोड़ करके, सजा ये है कि उसकी बीवी थी, अब ये महरूम हो गया
और वो जो तो होना ही चाह रहा था, अगर उसे तलाक दी तो वो नहीं। महरूम तो होना ही चाह रहा था, वो तो अपनी इच्छा से महरूम होना चाह रहा था। अगर महरूम होना चाह सजा रहा था, तो ये है ना कि एक रात के लिए आप चाह रहा था तो फिर लाना क्यों चाह रहा वापस? फिर वापस लाना क्यों चाह रहा है जब महरूम होना चाह रहा उसका तो अधिकार ही नहीं है। है? तो अधिकार नहीं है ना, हम भी तो ये कह रहे हैं अधिकार खत्म हो गया, यही तो उसको सजा है। लाने का ये जो हलाले का प्रोसीजर है ये गलत है। उसका जो अधिकार खत्म हुआ यही उसकी सजा है। रहा औरत, इसको कोई सजा ही नहीं, ये तो दूसरे से निकाह हो गया, अपने पति के साथ है वो, उसके लिए क्या सजा है? नहीं, आप ये बताओ प्रैक्टिकल में क्या है। बात खत्म करते हैं। प्रैक्टिकल में तो यहाँ नशा भी बहुत है, हमने भी बहुत कोशिश कर ली, नहीं खत्म हुआ। प्रैक्टिकल में तो पता नहीं क्या क्या है। नहीं, वो आलिमों की नजर में है सब। हलाले का जिक्र कुरान में है, 10 आदमियों के बीच हमने साबित कर दिया है, और 10 अच्छा, आदमी इस बात को जी। मान रहे हैं कि कुरान में हलाले का जिक्र है। हाँ। किसी को भी समझ में ना आए तो हमसे पूछ सकते हैं, हम कुरान में हलाले का जिक्र अच्छा। दिखाने को कभी भी तैयार ठीक है, एक सवाल बस मैं इनसे कर लूँ बस लास्ट। आप ईमानदारी से ये बताओ, जितने भी हलाले के केस हुए आपकी नजर में, क्या वो जिंदगी भर रहे उनके साथ या एक रात में तलाक हुई? ईमानदारी से बताना। बिना इसके सुन लो तो मेरे को बता दो। बहुत सी दुनिया जीना जारी फिर करती, क्या वो हलाल हो गया? नहीं, सही मैं बात। हलाले केस बता रहा कि एक ही रात में होता है कि 2 रात में? उसके निकाह में दे दी वो सब, पूरी उम्र तलाक ना दे। वो एक ही रात में क्यों देता है? कई जगह हुआ है सुनो, वो एक ही रात में क्यों सुनो, देता है? अगर वो बंदेज बैठ निकाह में दी जाके तुझे सुबह तलाक देनी है तो वो गलत है। अजी सुनो, अपनी मैं मर्जी से कभी भी मैं- तलाक मैं दे दो। इसका उदाहरण दे रहा हूँ सुबह भाई, कई जगह ऐसा हुआ है कि उसने निकाह कर दिया उसके इसमें लिए, बोल लो। हाँ उसने हलाले के लिए उन्होंने निकाह कर दिया उसके लिए, और उन्होंने तलाक दी नहीं दूसरे मालिक ने, और वो औरत ने भी मना कर दिया कि मैं तो इसके साथ ही रहूंगी। हमारे सामने जैसा आया हाँ हलाला सिर्फ 232 से ही साबित नहीं होता, हलाला या हलाल। इसके लिए 226 नंबर से लेकर के 232 तक इसमें जिक्र है। हलाला है ना यहाँ सब में। हलाल 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 232 क्या है? 230 मुफ्ती साहब ने 232 भी मैं सुना दूं। जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे चुको, देखियो मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा, जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे चुको और वे अपनी अवधि इद्दत पूरी कर लें, तो फिर इसमें रुकावट ना खड़ी करो कि वे अपने मनपसंद पतियों से निकाह कर लें, जबकि वे सामान्य रीति से आपस में निकाह करने पर राजी हों। तुम्हें नसीहत की जाती है कि ऐसी हरकत हरगिज ना करना। अगर तुम अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाने वाले हो, तुम्हारे लिए शिष्ट और सुध का तरीका यही है कि इससे बाज रहो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। आप उसको फोर्स नहीं कर सकते जिसको तलाक दिया है। ये कुरान शरीफ की आयत नंबर 232 बोल रही है। बिल्कुल आपका कोई अधिकार नहीं कि आप एक रात के लिए उसको दूसरे से सौंपे। सही। तो ये मैं ऑडियंस पर छोड़ता हूँ। हलाला हलाल, इसमें अंतर आप क्या समझे और कुरान क्या कह रहा? दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है, और इसका जिक्र ये कुरान में। ठीक है। धन्यवाद, शुक्रिया।